Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to solve one more question related to our cash flow statement. And we already did a few questions on cash flow statement. And with the coming time, we'll do more questions on cash flow statement, and we'll also discuss the other relevant topic of accounting, taxation, and other subjects related to the your commerce and accountancy. So please stay connected, and to being in a stay connected, do subscribe the channel, and if you like the session, don't forget to thumbs up. And if you don't like what you want to be an as an input, do share it in the comment section. And these numerical sessions are for the purpose of your learning, so I hope you gather a good information from this session. And with today's session, we are going to discuss in bilingual language, and what I want is ki everybody should be getting benefit. So in the last few sessions, few of the aspirants had said, ma'am, please use both the language in the same session, so that sometime if we won't able to gather the English or we won't able to gather the Hindi, we can just help with both the languages. So I'll with today's session we'll discuss in both the language. तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज इस सेशन में। कॉमर्स अचीवर के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम ऐसे ही अकाउंटिंग, टैक्सेशन और कई सारे न्यूमेरिकल्स को अब एवरी डे हम कवर अप करेंगे। सो आप सबके बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट के बाद कि मैम आप सेशंस को दोनों लैंग्वेज में साथ में कवर अप करें, क्योंकि कई बार आपको इंग्लिश, कई बार आपको हिंदी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम दोनों कंबाइंड लैंग्वेज का यूज़ करेंगे हमारे आज के सेशन में भी। और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का आज का सेशन में कवर करेंगे टॉपिक। तो चलिए क्विकली देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन और इसके सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। Company made a profit of rupees 1 lakh after charging depreciation of rupees 20,000 on assets and transfer to general reserve rupees 30,000. The goodwill amortized was rupees 7,000 and gain on sale of machinery was rupees 3,000. Changes in the value of current asset and current liabilities are: trade receivable showed an increase of rupees 3,000, trade payable an increase of rupees 6,000, prepaid expenses an increase of rupees 200, and outstanding expenses a decrease of rupees 2,000. And now we are required to prepare the cash flow from operating activity. Okay, so what is the difference in this numerical as compared to the other numerical we already did? The main change is like we already have covered the goodwill, and it's a paragraph type. Sometimes a student feel a bulky and don't like to read those kind of questions. Do not think that. Read patiently and all questions will be easy if you have a greater command over the concepts. And second catch in this numerical is that we are getting the changes in current asset and current liability as an increase and decrease, not on the basis of we haven't gathered an information on the basis of past year and current year. Okay, so that's why I request you, do not do ratification and do not memorize. Try to understand the things, and I believe you can do that same if we together practice every single day, and on the after some time I know you are going to be a champion. ओके तो हम आज ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी है कि कंपनी को जो प्रॉफिट है 1 लाख का प्रॉफिट है, जो कि डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद है। डेप्रिसिएशन कितना था? 20,000 का था एसेट पे। जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया, वो था 30,000 रुपये। गुडविल एमोटाइज्ड, अब भाई गुडविल तो हमारी इंटेंजिबल है, इसलिए उसमें हमने वर्ड यूज़ किया एमोटाइज्ड, वो है 7,000 रुपीज़। सेल हुई है मशीनरी की, उसमें जो गेन हुआ है वो 3,000। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एडजस्टेड हैं हमारे नेट प्रॉफिट में। और इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई करंट और एसेट, करंट लायबिलिटी में जो चेंजेस हैं कि ट्रेड रिसीवेबल यानी जो ट्रेड डेटर्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल हैं वो हमारे बढ़ चुके हैं 3,000 से। ट्रेड पेबल हैं वो बढ़ चुके हैं 6,000 से। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे बढ़ चुके हैं 200 रुपये से, और हमारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो घट गया है 2,000 से। और हमें प्रिपेयर करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या चेंज है, क्या यूनिकनेस है इस क्वेश्चन में, जो हमने लास्ट सेशंस में क्वेश्चन किए उसमें और इसमें डिफरेंस। सबसे पहला जो डिफरेंस है ये कि ये एक पैराग्राफ फॉर्म में है। कई बार स्टूडेंट जब पैराग्राफ से देख लेते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, पैराग्राफ में भी गिवन इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना है। बिल्कुल भी लंबे पैराग्राफ को देख के कभी नर्वस नहीं होना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, यहाँ पे हमने देखा कि जो भी हमारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है वो ईयर वाइज नहीं दिए हैं, जो कि आप स्ट्रेट अवे देख लो कि भाई ये पास्ट ईयर में था, ये करंट ईयर, ये इंक्रीज एंड डिक्रीज है। यहाँ पे पैराग्राफिक फॉर्म में दिया
दिया गया है कि ये इंक्रीज और ये डिक्रीज है। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, उस पर वर्क करें, प्रैक्टिस करें, रट्टाफिकेशन ना करें। एंड आई बिलीव अगर आज रोज आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे, सो आपको अगर जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं ना, आप उसमें चैंपियन हो जाएंगे, आप उस क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर लेंगे, अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर लेंगे और काफ़ी अच्छा कमांड कर लेंगे हर एक कॉन्सेप्ट्स पे। तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे हर एक रिलेवेंट टॉपिक्स के, ठीक है। तो अब आप भी बताएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक्स पे हम कौन से टॉपिक्स को कवर अप करें, लेकिन अभी हम चलेंगे धीरे धीरे कैश फ्लो स्टेटमेंट की ओर। तो हमें इस क्वेश्चन में आज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Okay, so first we need to look into the picture of what is a net profit before taxation. So when you go for the net profit before taxation, we need a net profit before taxation. So we'll do by the note 1. So after some space we do net profit before taxation. That means it should be before taxation. That means a net profit after adjusting all kind of expenses. So in this case, these are the underlying items. So we have a net profit of rupees 1 lakh after charging so and so. So we have a net profit of rupees 1 lakh. Okay, rupees 1 lakh. And then if you see that we have a general reserve also, means an amount of a profit, a company desire to keep some amount as a reserve purpose for the future use. So they keep some amount in the general reserve. I hope you have a good information, a good knowledge about what is general reserve. So these basic term I hope you are well aware. That's why if you are aware of these small words na, you are definitely going to rock on. So general reserve, so 30,000 is already taken from the profit and kept in reserve for some purpose. So we'll add back. I'm writing shortcut, please you don't do that. Don't use the shortcut for the purpose of even the practice. So we have 1,30,000 as a net profit before tax. Okay, so let's conclude in the other language. हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि नेट प्रॉफिट सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो है 1 लाख रुपए। और हमने देखा बहुत सारे आइटम्स दिए हुए हैं, डेप्रीसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, जनरल रिजर्व भी दिया गया। तो जनरली हम ये सारे एक्सपेंसेस दिखाने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसमें से कुछ पोर्शन हम यानी कंपनी कुछ पोर्शन निकाल करके रिजर्व में रखती है किसी पर्पस के लिए। आई होप आपको जो ये टर्म है जनरल रिजर्व उसकी मीनिंग क्लियर हो, ठीक है। तो जनरल रिजर्व में ये अमाउंट जो रखा इन्होंने 30,000, ये प्रॉफिट आने के बाद रखा है। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें हमारा जनरल रिजर्व इंक्लूड होना चाहिए, तो ही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। तो हम उस नेट प्रॉफिट में जो कि हमारा 1 लाख रुपए था उसमें हम जनरल रिजर्व को ऐड बैक करेंगे। आई होप हम ऐड बैक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल करके रिजर्व में डाल दे, यानी प्रॉफिट आपका कम हो गया था, इसीलिए हम उसे ऐड बैक कर रहे हैं ताकि हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो हमारे सामने आ जाए। क्यों प्लस कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं, ये आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, और सेटिस्फाई होना है, ठीक है। सो वी हैव 1,30,000 एज अ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन. So we have a net profit before taxation 1,30,000. Okay, and what other information we have? We have a depreciation. Depreciation क्या होता है? P&L में you have shown on the debit side and that reduced a portion of a net profit. What you will do? Add back. Do not do memorization. Satisfy yourself why you are adding and why you are subtracting. Item in the P&L. Just memorize. You have a P&L in front of you. There is a P&L item on the debit side. We have an expenses. On the credit side, we have a profit item. If we show the expenses, our profit keeps on reducing. And if we show the incomes, our profit increase. So to bring the true picture, what we have to do? Reverse. That means if we have shown the expenses and our profit has reduced, now to get back to the original profit, you have to
add back these expenses to get the original profit and reverse with the revenues or the incomes. I hope you gather that information. Let's conclude in the other language. आपने माइंड में क्या रखना है, पीएनएल स्टेटमेंट को अपने माइंड में बनाना है. तो आपके सामने पीएनएल है, डेबिट साइड में आपने बहुत सारे एक्सपेंसेस दिखा के रखे हैं, क्रेडिट साइड में आपने इनकम है. तो जब भी आप एक्सपेंसेस दिखाते जाते हो आपका प्रॉफिट उतने पोर्शन से गिरता चला जाता है, आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है. अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट के पास जाना है. क्यों? क्योंकि ये आइटम ना कैश के लिए नहीं है, ये आइटम मर एक बुक एंट्री है. तो ये जो एक्सपेंस दिखाया था इसने प्रॉफिट कम किया है. अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे ताकि हम एक्चुअल प्रॉफिट की ओर आ सके. तो आपने सेटिस्फाई होना है कि आप क्यों ऐड कर रहे हैं, ये क्यों लेस कर रहे हैं. प्लीज़ आप इसे रटेंगे नहीं, इसे अंडरस्टैंड करेंगे. कॉमर्स में एक एनर्जी क्रिएट करना है, वो हम मिलके करेंगे. क्लियर? सो what you have to do is increase, we have a depreciation like that, and then we have a goodwill. Okay, so let's add back. So what is the amount for the depreciation? We have 20,000 and 7,000. आई होप यू आर गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन, और मुझे ये बिलीव है कि आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास आइटम है लास्ट, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी. आई होप आपने लास्ट सेशन को देखा हो, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था. गेन ऑन सेल, गेन क्या है? इट्स जस्ट अ बुक एंट्री. जब आप सेल करते हो ना, आपके जेब में पैसे आते हैं. जब आप सेल करते हो तो आपके जेब में पैसे आते हैं. बट ये जो गेन है ना, और या तो ये जो लॉस है ना, ये केवल बुक एंट्री. तो पीएनएल में गेन कहाँ दिखाया होगा? क्रेडिट साइड में. बट ये तो कैश को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो गेन की वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है. हमें एक्चुअल प्रॉफिट पे आना है तो उस गेन को हटाना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे? रिड्यूस. वी हैव टू रिड्यूस दिस गेन. Okay, so I hope you can understand that gain on sale of machinery, it's just a book entry, because while you are selling any machinery, you are just getting from the sale, you receiving a money and keeping in your pocket. And yes, your pocket is going to full of money, but this gain is just a book entry. While preparing the P&L, what you have shown on the credit side, the gain, but this gain is not impacting our cash input or cash output. So this gain is just a book entry, and it's unnecessary increased our profit. To get the real picture, what we have to do, this gain already increases our profit, and we have to get into the true picture. We have to reduce it. To get back into the real picture, we have to reduce this gain on sale of machinery. So that will be rupees 3,000. I hope you satisfied. We have 1,57,000 and reduced with 3,000, 1,54,000. Hope it's okay. Okay, I hope you are not doing any kind of memorization. I hope you are understanding why we are doing plus or why we are doing minus. Okay, so now we have an operating profit before working capital changes. Again, my request, please don't use shortcut for the purpose of even practice and examination. So let's see, first we have a trade receivable. Trade receivable. Trade receivable means it increases. That means our trade receivable increases. That means in the last year, might be in an X year, we have sold say for X amount. Okay. But in current year, we sold X plus 1. Increase. That means we give a lot out of from our pocket. That means when we buy a stock, we put some money out and we buy the stock and we give on the credit. We sold on it credit. When you sold on the credit, what the circle going on? Try to understand. You buy a stock. Okay. You buy a stock or you purchased a stock. So what is happening? You are pay out cash or bank. Okay. So when you are paying out of cash or bank, you buy a stock and now you are selling to the debtors or trade receivable. But when you are selling to the trade debtors, they are paying you less. Not that means earlier you made a payment sale on 10 and now you made a payment of 12. Now that means you paid out cash more, but input is less as compared, because when you sold for 10 you get 10, when you sold for 12 you get 12 only, not 10. Okay, so in this case our debtors has been increased. Okay, so in this case we have our debtors can be increased. That means
our cash output is more, our pocket is loosed, we paid out somewhere more, that is by rupees 3000. Trade receivables 3000. Clear? Okay, I hope you understood. Okay, next we have trade payable increased by rupees 6000. That means we purchased on credit more by rupees 6000. That means we are not paying today. Might be we pay tomorrow or some other day, but not today. So we saved 6000 rupees. We saved 6000 rupees from purchase because we bought on the credit, and that's why we have a trade payables, and these trade payables has been increased. So okay, trade payables, and that is by amount rupees 6000. Okay, next is we have prepaid expenses increase. This is the prepaid expense. Okay, means you paid in well in advance and you paid 300 rupees more, that's why it's increased. So prepaid expense, you paid the expense but in advance. Who do that? Some do. So you paid some expenses well in advance even before they get due, and you paid those expenses well in advance, and that is increased by 200. That means you paid 200 rupees even today, but that is not due yet. Okay, so that is an increases. Prepaid expenses rupees 200. Okay, the last point is outstanding expenses decrease. That means you have some expenses of X day that was outstanding, but those are decreased. That means today you have paid it. That means you have paid it. When you paid it, your pocket get loosened and you pay money out. So decrease in outstanding expenses. I hope you are getting. We'll discuss in other language, conclude in that language also, not to worry. It's by rupees 2000. Please calculate this. 154,800 straight away. So this is 154,800 will be net cash from operating activity. Okay, I'm writing shortcut, please avoid for the purpose of examination. So let's conclude quickly in the other language. So हमें अब क्या करने हैं, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में समझना है. सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है ट्रेड रिसीवेबल. तो जब भी आप कोई गुड्स भाई बाय करते हैं तभी तो आप स्टॉक रखते हैं. आप एक कंपनी के बारे में सोचिए या एक छोटे से दुकानदार के बारे में सोचिए कि उसने भाई स्टॉक खरीदा है, तो उसने बाहर पेमेंट की, उसके जेब में से पैसे गए. ठीक, अब स्टॉक खरीदा, आपके पास बहुत सारे लोग परचेजिंग करने आते, तो आपने बहुत लोगों को उधार पे दिया, इसी वजह से आपके पास ट्रेड रिसीवेबल खड़े हो गए, है ना. तो बहुत लोगों को आपने उधार पे दिया. तो जब आप अब जिनको आप उधार पे नहीं देते हो तो आपके पास तुरंत गले में कैसे पैसा आ जाता है, तुरंत कैश आ जाता है, तो आपने उसे बढ़ा लेते हो. लेकिन आपने उधार पे दिया, यहाँ पे तो ट्रेड रिसीवेबल की बात हो रही है. अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे ये जो ट्रेड रिसीवेबल है ना वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया 3000 से. यानी आपने बहुत लोगों को जो है ज़्यादा पैसे जो है उधार पे दे दिए और अभी आपके पास पेमेंट नहीं है, तो आपका कैश ज़्यादा चला गया. कैश ज़्यादा चला गया तो कैश फ्लो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा. ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसे रिड्यूस करते हैं ट्रेड रिसीवेबल को. आई होप हमने इसे क्यों लेस किया ये आपको क्लियर हो चुका हो. नेक्स्ट आइटम हम देखते हैं ट्रेड पेबल की बात. ट्रेड पेबल भी इंक्रीज हुआ है 6000 रुपीज़ से. ट्रेड पेबल कौन हो गए, हम मार्केट से उधार पे खरीद के लाए हैं, हम मार्केट से उधार पे खरीद के लाए हैं स्टॉक को. ठीक है, लेकिन अब वो क्रेडिटर हो गए, ट्रेड पेबल से आ गया. हम उधार पे खरीद के लाए और ये उधार वाला जो चीज़ है वो बढ़ गया 6000 से. यानी हमने उसे पेमेंट नहीं करी, हमने उसे बोला बाद में ले लेना. यानी अभी हमारे जेब में वो पैसे बच गए हैं, कल देना होगा तब देखेंगे. तो अभी वो इंक्रीज हो गया है, यानी हमारे कैश में 6000 रुपये बढ़े हुए हैं. सो हम क्या करेंगे, हमारे कैश फ्लो को बढ़ा देंगे, ऐड करेंगे ट्रेड पेबल्स को 6000 रुपये से. आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो कि हमने इसे ऐड क्यों किया है. नेक्स्ट आइटम है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि बढ़ गया है 200 रुपये से, इंक्रीज हुआ है 200 रुपये से.
प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है जो अभी हुआ नहीं। टेलीफोन का आपने बिल अभी जो है ड्यू हुआ ही नहीं, लेकिन आपने पे कर दिया एडवांस, नहीं पोस्ट पेड वाले चलते हैं, तो आपने जो एक्सपेंस है वो आपने पहले ही पे कर दिया, यानी अभी वो आया ही नहीं बट आपने पहले ही पे कर दिया। आपकी जेब से 200 रुपये पहले ही निकल गए, जो अभी आपने सर्विस भी नहीं ली है, तो आपकी जेब से आउटफ्लो हो गया ना, कैश आपका कम हो गया 200 रुपये से। तो अब आपको क्लियर हुआ कि हमने लेस किया है प्रीपेड एक्सपेंसेस को 200 रुपये से। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ हो कि हमने इसे क्यों लेस किया। नेक्स्ट और लास्ट आइटम है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और जो कि डिक्रीज हुआ है 2000 रुपये से। कोई एक्सपेंस था हमारा पहले का, ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग था हमारे बुक्स में, अब हमने पे कर दिया, तभी तो डिक्रीज हुआ, तो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गया, यानी हमारा कुछ पैसा बकाया रह रहा था उसको हमने पे कर दिया, डिक्रीज। तो जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो यानी हमने पेमेंट करी है बाहर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी हमें पे करना था, हमने अभी तक नहीं किया, लेकिन अगर हम पे कर देंगे तो हमारा एक्सपेंसेस गिर जाएगा ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो जाएगा। तो जब वो कम हुआ हमारे जेब से बाहर पैसे चले गए, डिक्रीज हुआ तो पैसे चले गए, पैसे गया तो कैश आउटफ्लो हुआ। और यही वजह है कि हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 2000 रुपये से रिड्यूस किया, लेस किया, और बैलेंसिंग फिगर हमारा आ जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपने लास्ट सेशन जो अटेंड किया है, इसमें एक चीज़ मैंने मिस की है, जानबूझ के मिस की है, कि मैं चाहती हूँ कि आप गैदर करो कि क्या यहाँ पे इस लाइन में क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं लिखी हुई है लेकिन लिखी होनी चाहिए। अगर आपने लास्ट सेशन मिस किया है तो आप उसे फिर से देखें, रिक्वेस्ट करें आप उसे वॉच करने के लिए, और अगर आपने देखा है तो आप हमें बताएंगे कि क्या यहाँ पे मिस हुआ है। नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पे और क्या लिख सकते थे हम, जो कि हमारा आंसर है 1,54,800। तो आई होप काफ़ी अच्छा खासा आपको कमांड हो चुका होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आगे चल के हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका रिवीजन भी ज़रूर किया करें। वीडियो रिवीजन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक, वीडियो को स्पीड में करके कंप्लीटली जो है क्विकली रिवाइज कर लें, उससे टाइम भी बचेगा, और आप n नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल्स को यहीं पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम टाइम टू टाइम जो है सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह सबके जो है न्यूमेरिकल्स को डेफिनेटली विद टाइम हम कवर अप करेंगे, ठीक है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है तो हम सबको कंसिडर करते हैं, बट विद टाइम हम आपके साथ वो लेकर के आएंगे। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन, do like it. If you don't like, share in the comment section what you want to include more on these sessions, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहें, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। प्लीज़ कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।